Jai Hind everyone. Welcome to Geography class. Dear students, the chapter which is going on is composition and structure of the atmosphere. We have already discussed composition of the atmosphere and even we started structure of the atmosphere. So when we started structure of the atmosphere, we discussed different layers of the atmosphere. So atmosphere has 5 concentric layers. एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं. कौन कौन से? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. So dear students, we have already discussed about troposphere, stratosphere and mesosphere. And today we will discuss about thermosphere, exosphere and significance of the atmosphere. So dear students, I hope everyone is having book. So please open your book and this chapter, composition and structure of the atmosphere, and then please come to layers of atmosphere and then thermosphere, because today we will start from thermosphere. So ready students? So let's start geography class. So dear students, we are going to start structure of the atmosphere. और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हम लोगों ने पढ़ा है ट्रोपोस्फियर के बारे में, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में और मेसोस्फियर के बारे में. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. सो डियर स्टूडेंट्स, about thermosphere, the thermosphere lies above the mesosphere. मेसोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर है and it extends from about 80 kilometer to about 400 kilometer above the mean sea level. ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोस्फियर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक. थर्मोस्फियर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है. सो वी कैन से दैट द थर्मोस्फियर लाइज अबव द मेसोस्फियर. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर above the mean sea level. अब क्या क्या होता है इस लेयर में? तो इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली. बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ता है विथ द इंक्रीज इन हाइट. आप जैसे जैसे इस लेयर में ऊपर चलते चले जाओगे, टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज होता चला जाएगा एंड इट रीचेज मोर देन 15,000 डिग्री सेल्सियस. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह से ऊपर चलते चले जाओ थर्मोस्फियर में, एंड व्हेन यू विल रीच टू अपर लेयर, टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? मोर देन 15,000 डिग्री सेल्सियस. इट्स वेरी वेरी हॉट, इवन यू कैन नॉट इमेजिन. देन बट देयर इज वन unique feature of this. One does not feel warm in this layer as thin air holds little heat. इस लेयर में आपको बहुत गर्मी नहीं लगेगी. While I said that temperature reaches 15,000 degree Celsius, but you will not feel warm. आपको वहां पे गर्मी नहीं लगेगी. Why? Because air is very thin. Air बहुत thin है वहां पर and it holds little heat. तो ये बहुत हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, होल्ड नहीं कर पाता.
Clear? So one does not feel warm in this layer as thin air holds little heat. The lower part of the thermosphere is called ionosphere as it has ionized molecules. अगर हम थर्मोस्फीयर के लोअर पार्ट की बात करें तो हम लोअर पार्ट को आयोनोस्फीयर भी कहते हैं. Why ionosphere? Because it has ionized molecules. जो भी molecules इसके लोअर पार्ट में हैं वो ionized हैं. That's why it is known as ionosphere. This layer reflects low frequency radio waves back to earth. ये अर्थ की तरफ बहुत लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करते हैं. And that's why it helps in long distance communication. जब हमको बहुत दूरी पे कोई बात करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, इंग्लैंड और इवन फार प्लेसेस, then this layer helps a lot. So this layer reflects low frequency radio waves back to earth, thus it helps in long distance communication. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये लेयर बहुत हेल्प करता है. तो क्लियर हो गया? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर. देन टेम्परेचर कैन रीच मोर देन 15,000 डिग्री सेल्सियस. One does not feel warm in this layer as thin air holds little heat. The lower part of the thermosphere is also known as ionosphere because it has ionized molecules. This layer reflects low frequency radio waves back to earth, and that's why this layer helps in long distance communication. बहुत दूरी तक अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो ये लेयर बहुत हेल्पफुल है. So clear about thermosphere? Okay, now come to next. So dear students, next layer of atmosphere is exosphere. ये सबसे ऊपर का लेयर है एटमॉस्फेयर का. सो द exosphere is the uppermost layer. सबसे ऊपर का लेयर कौन सा लेयर है? एक्सोस्फीयर. आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अर्थ के सबसे नियर का लेयर क्या है? ट्रोपोस्फीयर. उसके बाद उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर, एंड एट लास्ट, और यू कैन से अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फीयर. The density of air is very low. इस लेयर में एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, एंड इट इज इन अ रेयरफाइड फॉर्म. वेरी लो डेंसिटी ऑफ एयर एंड इट इज इन अ रेयरफाइड फॉर्म. देन वेरी लाइट गैसेज. अगर इस लेयर की बात करें तो वेरी लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फाउंड इन दिस लेयर. इसी लेयर में बहुत हल्के लाइट गैसेस पाए जाते हैं लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम. दे आर फाउंड इन दिस लेयर एक्सोस्फीयर. और अब बात करें टेम्परेचर की, तो इन दिस लेयर ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट. आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा, एंड इट में रीच मोर देन 4,500 डिग्री सेल्सियस. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके ऑलमोस्ट बहुत ऊंचे चले जाओगे तो टेम्परेचर 4,500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. यू कैन नॉट इमेजिन. लेकिन फिर वही बात, यू विल नॉट फील वार्म बिकॉज एयर इज वेरी थिन. और अब बात करूं कि एक्सोस्फीयर कहां तक है, तो एक्सोस्फीयर मर्जेस ग्रेजुअली इनटू आउटर स्पेस.
थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर यहां से लेकर वो पूरा आउटर स्पेस तक है। सो दीज आर द लेयर्स। एक बार फिर से देख लो एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो and it is in a rarefied form. Then about temperature, very light gases like hydrogen and helium are found in this layer. What about temperature? So temperature increases with height and may reach 4500 degrees Celsius. The exosphere merges gradually into outer space. एक्सोस्फीयर ठीक थर्मोस्फीयर के ऊपर से स्टार्ट होता है और आउटर स्पेस तक ये मर्ज कर जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो हमने एटमॉस्फेयर के सभी लेयर के बारे में डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स। Now we have to discuss about significance of the atmosphere. अब हमको ये जानना है, जब लेयर का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, एक्सप्लेनेशन कर लिया, लेयर्स के बारे में बता दिया, now we have to understand about significance of the atmosphere. एटमॉस्फेयर की सिग्निफिकेंस क्या है? So let's start about significance. So the lower layer of the atmosphere has life-giving oxygen which is needed for breathing. पूरे एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेवल है, वहां पे किस तरह के गैस पाए जाते हैं? वहां पर ऑक्सीजन पाया जाता है। एंड यू नो दैट ऑक्सीजन इज अ लाइफ गिविंग गैस। हम यहां पर जीवित हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज ए लाइफ गिविंग गैस एंड वी कैन find it in the lower layer of the atmosphere. And as you know that oxygen is needed for breathing. हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। Yes. Then nitrogen and carbon dioxide are needed by plants for their growth. अगर नाइट्रोजन की बात करें, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो गैस है एटमॉस्फेयर में वो क्या है? दैट इज नाइट्रोजन। So nitrogen and carbon dioxide both are needed by plants. It means अर्थ पे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। So you can say or we can say that nitrogen and carbon dioxide are needed by plants for their growth. Then it prevents the sun's ultraviolet rays from reaching the earth's surface. सन का जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हम लोगों के लिए बहुत हार्मफुल है। तो वो एटमॉस्फेयर है जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ सरफेस पे पहुंचने से प्रिवेंट करता है। ओजोन लेयर की हम लोगों ने बात की थी। तो इट प्रिवेंट्स द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। आफ्टर दैट इट एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस की तरह से एक्ट करता है एंड कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। व्हाट इट कंट्रोल्स? इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। डे को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देता और नाइट को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देता। सो इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। Then it softens the sun's glare during the day. जो सन का ग्लेयर है, जो शाइन है, उसको सॉफ्ट करता है दिन के समय। So it softens the sun's glare during the day. The change of weather and climate is due to presence of the atmosphere. Dear students, आप देखते हो ना, वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है ना, क्लाइमेट चेंज होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो वेदर एंड क्लाइमेट
चेंज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से ही वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। सो द चेंज ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। कभी बहुत गर्मी आ गई, बहुत ठंड आ गई, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया, ये सब किसकी वजह से है? ये सब एटमॉस्फेयर की वजह से है। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, वेरी एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर कॉजेज कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है ना, तो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है और उसी से वाटर वेपर बनके वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है। मैंने कहा ना कि एटमॉस्फेयर हैज वाटर वेपर आल्सो, तो वो वाटर वेपर क्या होता है? वो कंडेंस हो जाता है। आपने पढ़ा होगा एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी वो रेन के रूप में, बरसात के रूप में नीचे चले आते हैं। So the presence of water vapor causes condensation and precipitation. Sound waves travel through air. You know that अगर एयर ना हो तो मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक नहीं जा पाएगा। So sound waves travel through air. ये जो साउंड है ये एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, एंड एयर का मतलब एटमॉस्फेयर। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता डियर स्टूडेंट, तो आप किसी को कुछ भी बोलते वो वहां तक नहीं पहुंचता, कोई किसी की आवाज नहीं सुन पाता। सो साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर। वी कैन हियर साउंड बिकॉज ऑफ एयर। इट शील्ड्स अस फ्रॉम मेटेओर्स। बहुत सारे मेटेओर्स आते हैं ना, लेकिन ये शील्ड कर देता है, ये अर्थ को उनसे बचा लेता है। सो इट शील्ड्स अस फ्रॉम मेटेओर्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच atmosphere is important. So dear students, now let's summarize the chapter. हम लोग चैप्टर को एक बार समराइज कर लेते हैं, हल्के से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। So now please listen me carefully. मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, स्मॉल सेंटेंसेस में बात कर रहा हूं। The earth is surrounded by a thick layer of gases called, क्या बोलते हैं उसको? Yes, the atmosphere. So the earth is surrounded by a thick layer of gases called the atmosphere. Then the atmosphere is a mixture of colorless, odorless and tasteless gases. एटमॉस्फेयर जो है वो किस तरह के गैसेस का मिक्सचर है? तो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस का, जिसमें कोई कलर ना हो, जिसमें कोई ऑर्डर ना हो और जिसमें कोई टेस्ट ना हो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कौन कौन से मेनली गैसेस प्रेजेंट हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The lower layer of the atmosphere has water vapor and dust particles. एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेवल है, लोअर लेयर है, वहीं पर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स हैं। आफ्टर दैट मैंने इससे पहले भी रिपीट किया, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 कंसेंट्रिक लेयर्स। पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से लेयर्स? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। वेदर फेनोमेना सच एज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, fog, wind, rain, etc. occur in the troposphere. वेदर के जो फेनोमेना होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सब ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। क्या क्या? लाइक फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल बनते हैं ना, फॉग, विंड, रेन, वो सारे फेनोमेना जो हैं वो इस लेयर में होते हैं। The lower part of the stratosphere has concentration of ozone which absorbs the ultraviolet radiation of the sun.
स्ट्रेटोस्फियर का जो लोअर पार्ट है वहां पर ओजोन कंसंट्रेट है। ओजोन, उसका क्या फायदा है अर्थ पर हम सबको? तो ओजोन एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। ये ओजोन ही है जो सन का जो अल्ट्रावायलेट रेज है, रेडिएशन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक आने नहीं देता है। मैंने पहले भी बताया है कि द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन इज हार्मफुल फॉर अस। तो ये ओजोन है जो कि इसको एब्जॉर्ब कर देता है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट को ओजोनोस्फियर भी कहते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट द मेसोस्फियर, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर। सबसे ठंडा लेयर जो है वो मेसोस्फियर है। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट। इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, मेसोस्फियर में जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, टेम्परेचर क्या होगा? वो कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है? ठंड बढ़ती जाएगी। दैट्स वाई इट इज नोन एज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके बाद इन द थर्मोस्फियर द टेम्परेचर में रीच, टेम्परेचर कहां तक जा सकता है? अभी मैंने बताया, यस, 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है अपने अपर लिमिट पर। द एक्सोस्फियर इज द अपर मोस्ट लेयर एंड ग्रेजुअली मर्जेस इनटू आउटर स्पेस। जो एक्सोस्फियर है वो सबसे ऊपर का लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, और इट मर्जेस इनटू आउटर स्पेस। ये आउटर स्पेस में जाकर मर्ज हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस आज हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। वी डिस्कस्ड अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज completed today. From next period we will start a new chapter, and it is my humble request to all my students that please read this chapter carefully, and today even I will share the questions and answers of the exercise. So please write it in your fair notebook. Till then, thank you and have a nice day.